the CCTV footage. So we have the full details. Satya Vijay accessed those pictures from outside the Mahakal Ujjain temple, and we had the confirmation coming in at about 9 o'clock. So we were waiting for the official confirmation. Republic Media Network broke the story at 9 o'clock. Republic Bharat, the first channel across the country to break the story, and the Republic Media Network has broken it first. So we accessed the details. We were waiting for an official confirmation, and we got that official confirmation coming in from the Ujjain district magistrate as well. The district authorities in Ujjain have confirmed to Republic TV. At 9 o'clock we got the first picture of him being arrested, sitting on a sofa, and the CCTV sequence. We have all the pictures of him sitting on a sofa, pictures of him being brought in by the police. At 9 o'clock Republic Media Network has accessed the pictures and had the tip off, and we were waiting for the official confirmation. And Satya Vijay, the first reporter across India to access these details first. So it is a big breakthrough. I don't know, I'll just have to check the distance between Kanpur and Ujjain, but this man has gone all the way from Kanpur and Ujjain, and he entered the temple. We also have the details of the circumstances under which he was arrested and where he was arrested, and Abhishek Kapoor, our executive editor, also joining us with details of that. We are told that he was arrested from outside the Mahakal temple. Outside the Mahakal temple, not just that, we have been told that he took a 250 rupees ticket. He reached the Mahakal temple at about 6:30 a.m. So these are breaking news updates that we have. Vikas Dubey reached the Mahakal temple at 6:30 a.m. this morning. He bought a 250 rupees ticket to go inside and pray inside the temple. And he was arrested from outside the Mahakal temple. So we have the CCTV footage as well, sequence by sequence, images as he's brought into the police station, different frames available with us. And if you look at the pictures of him, I think in Faridabad, we're not sure whether it was him outside that hotel in Faridabad, but if you look at the pictures, they are matching. Satya Vijay is on the phone line. Satya Vijay accessed the story first. The first reporter across India, Satya Vijay of the Republic Media Network, had accessed the details. He was waiting for an official confirmation. A story broken on Republic Media Network. Satya Vijay, ये कितने बजे arrest हुआ था, और what more do we know about where he was arrested, how he was arrested, and how the identity was confirmed? Satya Vijay. यहाँ देखिए, जिसे पूरा देश ढूंढ रहा था, पूरे हिंदी भाषी प्रदेशों में जिसे पूरी 6 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, वो गैंगस्टर मोस्ट वांटेड विकास दुबे महाकाल की शरण में पहुंचा था। उज्जैन वो दर्शन करने गया था। समझ सकते हैं कि कितना बेखौफ था, और उसे किसी चीज का डर नहीं था। उसे ये भी डर नहीं था कि मध्य प्रदेश समेत जितने भी हिंदी राज्य हैं यहाँ पर पहले से ही अलर्ट है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं वो अपना थोड़ा चेहरा या भेष बदलकर, इस तरह से कह सकते हैं, मास्क, चूंकि अभी कोरोना चल रहा है तो मास्क लगा के लोग रखते हैं, तो मास्क लगा, आप तस्वीर भी देखिए उसमें मास्क लगाए हुआ है। हालांकि ये पुलिस अरेस्टिंग के समय की तस्वीर से मास्क नीचे है, तो ऐसे में शायद वो मास्क लगाकर दर्शन करने पहुंचा था। शायद वो भगवान से ये मांग रहा हो कि उसे बचा लिया है। लेकिन जो उसके कर्म है, जिस तरह से उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, जो जघन्य अपराध विकास दुबे ने किया, उसकी सजा तो उसे मिलेगी। लेकिन विकास दुबे को मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की पुष्टि कर दी है। उनका कहना है कि उज्जैन पुलिस की तारीफ भी की है। अब इस ऑपरेशन में उज्जैन पुलिस के अलावा क्या यूपी की टीम थी, यूपी पुलिस को भी इस चीज की इंफॉर्मेशन थी, ये सब अभी चीजें निकल कर सामने आएंगी। क्योंकि अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि एमपी के उज्जैन से महाकाल मंदिर में दर्शन करने विकास दुबे पहुंचा था। हमें इसकी जानकारी अब से 1 से 1.5 घंटे पहले लगी। हालांकि सभी वरिष्ठ अधिकारी इस समय व्यस्त होंगे, इसी के चलते कंफर्मेशन थोड़ा लेट हुआ। लेकिन अब इस पर टोटली मोहर लग चुकी है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हो गया। इसके सीसीटीवी फुटेज हैं, और जो पुलिसकर्मी से ले जा रहे हैं, ये देखिए, उस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही लोगों को पता चला कि ये विकास दुबे है, आसपास के लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं दहशत में आ गए, क्योंकि पूरे देश में इस आरोपी की खबरें हैं, चर्चा है कि 8 लोगों को इस तरह से विकास दुबे ने मारा था। तो एक बड़ी ब्रेकिंग है, विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और जैसा कि पहले से हम कहते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत यूपी, तमाम जो राज्य हैं जिनमें कि पहले से अलर्ट था, हिंदी बेल्ट के खासकर राज्य जहाँ पर ये जा सकता है, और यूपी बॉर्डर से सटे हुए राज्य जहाँ ये घुस सकता है, उन सब जगह पर अलर्ट था। और इसी अलर्टनेस का फायदा पुलिस को मिला है कि विकास दुबे को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। अब ये अरेस्टिंग में हो सकता है, देखिए, एक एंगल ये भी मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे ने इसमें भी कुछ सोचा हो, क्योंकि 2 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है। जो विकास दुबे के गुर्गे हैं, उन 2 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है।
तो शायद इसकी कोई प्लानिंग भी हो इसके पीछे, ये कह नहीं सकते अभी। लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके माइंड में इस तरह की चीजें रहती हैं कि वो अगर दूसरे राज्य में अरेस्टिंग उनकी होती है तो यहाँ से उन्हें कोर्ट के जरिए यूपी अपने साथ ले जाती है। ये सब पहलू है जिन पर की बाद में बात खुलकर निकलकर सामने आएगी। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पर अपना वर्जन भी दे चुके हैं। उन्होंने अधिकृत तौर पर यह पुष्टि भी कर दी है और इस पूरे आरोपी है विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम था। कल इनाम की राशि बढ़ाई गई थी और इसके बाद से सरगर्मियां तेज हो गई थी कि कहाँ हो सकता है, क्या ये नेपाल भाग गया, क्या ये राजस्थान गया या बाकी जगह। इन सब पहलुओं पर काफी इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, लेकिन बड़ी सफलता मध्य प्रदेश पुलिस की यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर है। एंड सत्य विजय, कंग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट रिपोर्टर थे जिसको इंफॉर्मेशन मिला, जिसको विजुअल्स मिला था, सीसीटीवी फुटेज मिला था, अरेस्ट का पिक्चर्स मिला था और आपको ये कॉन्फर्मेशन भी अभी मिल गया है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ क्या बता रहे हैं, कितने बजे को अरेस्ट हुआ था और ये इसका आइडेंटिटी कंफर्म कैसे हुआ? देखिए, उज्जैन में जो हमारे सोर्स हैं जिन्होंने हमें ये सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए, जिन्होंने हमें ये तस्वीर विकास दुबे की दी, वो पहले से श्योर था। लेकिन चूंकि इतना बड़ा मामला है और कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि विकास दुबे जैसा शातिर आरोपी मंदिर में हो सकता है, दर्शन करने जा सकता है, इसीलिए हमने थोड़ा इस खबर को ब्रेक करने से पहले इंतजार किया कि ऑफिशियली कंफर्मेशन हो जाए। लेकिन इसके बाद खुद गृह मंत्री से बात की, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कंफर्मेशन दिया है कि उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। जाहिर तौर पर देखिए, जैसा कि बात हो रही थी कि उसके हाथ में जो तस्वीर है, देखिए उसमें कलावा होता है, वो भी वो बांधे हुए हैं। और इस तरह के जो कलावा होते हैं वो उज्जैन महाकाल मंदिर में ही पुजारी जो भी दर्शन करने आते हैं उन्हें बांधते हैं। तो ये कह सकते हैं उस तस्वीर के आधार पे कि ये दर्शन कर चुका था। दर्शन करने के बाद ये भागने की फिराक में होगा। और जैसा कि हमारे सभी सहयोगी बताते आ रहे हैं कि वो खुद की गाड़ी, खुद का बाकी सामान यूज नहीं कर रहा था, तो ऐसे में हो सकता है वो लोकल कोई वाहन लेकर, ऑटो या लोकल जो व्हीकल्स चलते हैं उनके जरिए यहाँ से भागता है। लेकिन कलावे से ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि विकास दुबे उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन कर चुका था। और अगर पुलिस थोड़ी भी लेट होती या कुछ भी इनपुट्स में देरी होती तो शायद विकास दुबे यहाँ से भी पुलिस के हाथ से निकलकर भाग सकता था। लेकिन मैंने कहना चाहिए कि बड़ी एक कामयाबी है, बड़ी एक सफलता है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जितने लोग हैं, सब जगह की पुलिस, एसटीएफ, कई टीमें बनाई थी, इंट की टीमें लगी हुई थी इसकी गिरफ्तारी के लिए या किसी भी तरह इसको अरेस्ट किया जाए इस चीज के लिए। तो ऐसे में बड़ी सफलता उज्जैन की यहाँ पर हाथ लगी है। बड़ी खबर है। और सत्य विजय, और ये भी बता रहे हैं कि आप ये वो ही वांटेड टू बेसिकली एंटर द टेंपल, ही वांटेड टू गो इनसाइड द टेंपल, डू द दर्शन बिफोर बिफोर पॉसिबली गेटिंग अरेस्टेड। सत्य विजय, क्या हमारे पास ये जानकारी है कहाँ से आया था उज्जैन? वाज ही इन फरीदाबाद? वेयर डिड ही गो आफ्टर कानपुर? कुछ डिटेल्स आई है बाहर? देखिए, ये डिटेल्स अभी आना बाकी हैं, क्योंकि अभी गृह मंत्री ने अपनी मीडिया से बातचीत की है और संभवतः उस बातचीत में ये सारी जानकारी हमें मिलेगी कि कहाँ ये था, कहाँ से आया है। अभी प्रारंभिक तौर पर ये कहना काफी जल्दबाजी होगा कि कहाँ से आया था, क्योंकि लगातार हम ये न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये इनपुट अभी नहीं मिल पाया है कि कहाँ से, किस रास्ते होते हुए मध्य प्रदेश और खासकर उज्जैन में इंटर किया। लेकिन गृह मंत्री ने उसका अपना वर्जन दे दिया है और मैं चाहूंगा कि अगर वो गृह मंत्री की बाइट ऑन एयर हो तो उसमें और ज्यादा जानकारियां निकलकर सामने आएंगी कि किस तरह से ये साथ जो बदमाश है, गैंगस्टर है, 5 लाख का इनामी है, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुका है, वो कहाँ से, किस रास्ते से घुसते हुए आया होगा। क्योंकि कई इलाके हैं यूपी से सटे हुए, मध्य प्रदेश के चंबल बॉर्डर है, रीवा बॉर्डर है, जहाँ से ये, क्योंकि कई लोग इलाहाबाद होते हुए रीवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश में इंटर करते हैं, कई मुरैना ग्वालियर वाला बेल्ट अपनाते हैं। तो इसकी जो संभावना थी वो ये पहले जताई जा रही थी कि ग्वालियर बेल्ट से होते हुए
एमपी में इंटर किया और फिर वापस भाग गया है। लेकिन अब ये दर्शन, जैसे कि मैं तस्वीर का जिक्र कर रहा था, उसके हाथ में कलावा है और इससे ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि दर्शन ये कर चुका था। अब इसे लोकल सपोर्ट यहाँ पर किसने दिया? विकास दुबे को। अभी इन तस्वीरों में जो फुटेज है हमारे पास, जो CCTV है, उसमें तो विकास दुबे हमें सिर्फ अकेला दिख रहा है, उसके साथ किसी और की अरेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा, कोई ना कोई उज्जैन का या मध्य प्रदेश का शातिर या बड़ा अपराधी होगा जिसने विकास दुबे की यहाँ तक आने में मदद की हो। दूसरी बात ये कि कल PHQ के वरिष्ठ अधिकारियों से, खुद DGP से हमारी बात हुई थी, उसमें ये चीज निकलकर सामने आई थी कि 15 से ज्यादा ऐसे अपराधी हैं, 15 से ज्यादा ऐसे कुख्यात अपराधी हैं मध्य प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के साथ जेल में रह चुके हैं, लंबे समय तक जेल में उसके साथ रहे हैं। वो इसके मददगार बन सकते थे, उनकी लिस्टिंग की गई थी, उन्हें सर्च किया जा रहा था, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं चल पाता, क्योंकि अभी सभी जो है ये जो कुख्यात अपराधी विकास दुबे के साथ मध्य प्रदेश के जेल में रहे थे उत्तर प्रदेश की, ये सभी अभी जमानत पर बाहर हैं। तो ऐसे में ये एक इनपुट पुलिस के पास था कि ये लोग विकास दुबे के मददगार बन सकते हैं। और अब जैसा कि ये बड़ी खबर सामने आई है कि उज्जैन से गिरफ्तार हो गया है, दर्शन करने आया था, मतलब कितना बेखौफ था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसे लोकल सपोर्ट मिला है, और लेकिन यहाँ उसकी जो चाल है, यहाँ जो उसका साथिपना है, वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया और विकास दुबे की यहाँ पर अरेस्टिंग हो गई है। Satya Vijay हमारे साथ, Satya Vijay, I'm freeing you right now because Satya Vijay has broken the story for the Republic Media Network. First reporter across India to break the details. In fact, he sent us the details at 9 o'clock. At 9 o'clock, viewers, he sent us the details that he has been picked up in Ujjain. He said, wait before breaking the story because we need a confirmation. And we waited till the district magistrate and then the Madhya Pradesh government also confirmed to Republic TV that